Good morning, students. In ENGCE 201, we are nowadays going through Vivekananda Great Journey to the West, which is written by Roman Roland ने जो है ये ऐसे आपका लिखा है The Great Journey to the West. It deals with the struggle of Vivekananda. He had a dream. He wanted to represent India in in America. Chicago में he wanted to represent India. There was a religious summit which he wanted to attend. तो उनको attend करने के लिए he was sent from India, but he was not. He failed to get that very support which was required to be there. So he went. And what his attire was, he just put on a long cloak and a turban of orange color, and he was asked to move ahead. He continued with that. और उसके बाद क्या हुआ, he visited various countries where he saw development which was being made by these countries, and he really felt one thing, that India is lacking somewhere. He wanted to see India with those countries, उन countries जैसे चाइना, जापान के उन्होंने जर्नी की. He wanted to see our country with the same. So he had a dream. He nurtured that very dream inside his heart, and he just enjoyed each and everything whatsoever was coming there. जो उनके वे में आ रही थी, whatsoever was coming on his way, he just enjoyed each and everything. And at last what happened, that now he was trapped badly when he came to know that the date of the that very meeting for which he had been, और उस summit की जो date थी, that was a parliament जो होने वाली थी, religious parliament. It was the date was on 11 September 1893, but he left India. It was 31st May 1893. 31 मई से लेके 11 सितंबर तक he just wandered, and he was not having money. He asked for money. उन्होंने टेलीग्राम भेजा इंडिया में. People didn't cooperate with him, but he didn't want to escape. वो भागना नहीं चाहते थे. What did he do? He had a burning desire to learn something. He wanted to show the world the greatness of our tradition, our culture, and our हम लोगों की जो सभ्यता है, उस he wanted to share each and everything, and he wanted to just show the world the great Indian life. उस चीज़ के बारे में बताना चाहते थे कि भारतीय जो सोच है वो कितनी बड़ी है. So he stayed there. He continued his struggle on the way. At times he had to beg like a sannyasi. He was just people didn't treat him well. Some of the people treated him well. Because he was treated well. Why was he treated well? Because of his knowledge only. जब भी वो किसी से बात करते थे, the knowledge he possessed, it just impressed the person. वो सामने वाले को इम्प्रेस करते थे. किस तरह से? अपनी नॉलेज से. वो कोशिश नहीं करते थे, बट इट वॉज इट हैपेंड. ये हो जाता था. बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू इम्प्रेस समवन, आवर एफर्ट्स गो इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. वो दिख जाता है. लेकिन व्हेन वी टॉक टू समवन विद विद एन इंटेंशन कि ये चीज़ सही है, यू जस्ट कीप योर व्यू पॉइंट वेरी क्लियर टू समवन, तो क्या होता है कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है, और शी फील्स वेरी इम्प्रेस. सेम वाज द केस विद विवेकानंदा. He met a lady who gave him address, who supported him, who favored him. Address was lost, each and everything was lost. एक जो है वो बॉक्स में रात गुजारी. उसके बाद again he met someone who helped him to reach the place where जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे चल रही थी. So the day came, जिस दिन का उनको इंतज़ार था. So large number of people were there. They represented different religions. हर धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले थे. लेकिन आज स्वामी विवेकानंद क्या करने वाले थे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वेरी इवेंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंदा. द वे ही वॉज रिकॉग्नाइज, द वे ही वॉज एक्सेप्टेड, द वे हिज thought was accepted by the Americans. In general, we know about the people of foreign countries. They have a very different type of a lifestyle. अलग तरह की ज़िंदगी वो जीते हैं. उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, उनके थॉट्स अलग हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है. लेकिन दिस वेरी पर्सन हु वाज द यंगेस्ट वन देयर, जो सबसे छोटे थे वहाँ पे, किस तरह से उन्होंने अमेरिकन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस किया. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वी फील लाइक कि हम लोगों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहते हैं कि मेरी एज कम है. हम इसी चीज़ को लेके रोते हैं जनरली कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, या मैं छोटी हूँ, मैं किस तरह से लोगों को कन्विंस करवाऊँगी. बट द नॉलेज यू पोजेस, आपके पास नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए. दैट स्पीक्स.
It is not that you are 15 years old, 16 years old. Important is that your knowledge speaks, it expresses itself. Knowledge जो है वो आपको exhibit करती है, आपको express करती है, और आपकी वहाँ एज काउंट नहीं करती, वहाँ आपका ज्ञान या नॉलेज काउंट करती है. सेम वाज द केस विद विवेकानंदा. ही डिडंट फील स्कैर्ड. हाँ, यू नो, ही वॉज फीलिंग लिटिल बिट, ही वॉज फीलिंग कि पीपल वर, यू नो, 50s 60s वाले लोग थे वहाँ पे, एंड दे वर वेरी मेच्योर. पर्टिकुलर रिलीजन का बड़ा नॉलेज था. फॉर सम ऑफ देम द क्रिश्चियनिटी वॉज ग्रेट, फॉर सम ऑफ देम बुद्धिज्म वॉज ग्रेट. बट वट विवेकानंदा सेड, it really touched the hearts of thousands and countless people there. So what happened on Monday? It was Monday, 11 September 1893. क्या हुआ उस दिन? The first session of the parliament was opened. First session जो था पार्लियामेंट का वो खुला. At the center sat Cardinal Gibbons. Cardinal Gibbons center में थे. Round him to the left and right were grouped the Oriental delegates. उनके लेफ्ट और राइट साइड पे कौन थे? ओरिएंटल मीन्स जो पूर्वी क्षेत्रों के थे वो डेलीगेट से प्रताप चंद्र मजूमदार एंड द चीफ ऑफ ब्रह्मो समाज, द ओल्ड फ्रेंड ऑफ विवेकानंदा रिप्रेजेंटिंग द इंडियन थीस्ट्स टुगेदर विद नागरकर ऑफ मुंबई. और बॉम्बे के जो नागरकर थे, एंड जो थीस्ट होता है जो धर्म में विश्वास करने वाला है, एंड धर्मपाला, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द बुद्धिस्ट ऑफ सिलोन. वो सिलोन के बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे. गांधी रिप्रेजेंटिंग द जैन्स, जैन्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे गांधी नाम के कोई रिप्रेजेंटेटिव थे. चक्रवर्ती रिप्रेजेंटिंग द एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो है एनी बेसेंट के साथ इस्टेब्लिश हुई थी, तो वहाँ पे चक्रवर्ती कोई थे. बट अमंग देम ऑल इट वॉज द यंग मैन हु रिप्रेजेंटेड नथिंग. उन सब में से एक यंगेस्ट पर्सन था, ही वो स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन ही रिप्रेजेंटेड एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ रिप्रेजेंट किया उन्होंने. द मैन बिलोंगिंग टू नो सेक्ट, वो किसी छोटे समूह से, सेक्ट से संबंधित नहीं थे, बट रादर टू इंडिया एज अ होल. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे. ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. जहाँ पे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो वो उस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे. हु ड्रू द ग्लांस ऑफ द असेंबल्ड थाउजेंड्स, एंड थाउजेंड्स पीपल्स वर देयर. हज़ारों की संख्या में लोग थे, एंड दे वर लुकिंग एट हिम. एज भी कम थी, ड्रेस भी डिफरेंट थी, संघर्ष भी था, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था. सो इट्स फैसिनेटिंग फेस, उनका चेहरा अट्रैक्टिव था. क्यों था? ही स्ट्रगल्ड बट ही टुक इट एज वेरी पॉजिटिव. ही हैड नॉलेज, ही टुक इट वेरी पॉजिटिव. उन्होंने सोचा कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला है उस चीज़ को एग्जिबिट करने का, शो करने का जो मेरे पास है. एंड नोबल स्ट्रेचर, ही वॉज लुकिंग नोबल. एंड गोर्जियस एप्रल वॉज गोर्जियस, इट वॉज अमेजिंगली गुड. ऑरेंज कलर का पूरा जो ड्रेस था उनका, with heightened the effect of this apparition from a legendary world. ऐसा लग रहा था कि वो किसी लेजेंडरी कहानियों के वर्ल्ड से वो आए थे. hid his own emotion, उन्होंने अपनी भावों को छुपाया. इन जनरली हैपन्स, जब बहुत बड़ा गैदरिंग को आप एड्रेस करते हो तो आपके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन रहता है, यू फील अ बिट स्कैरी, तो वो चीज़ें भी थी. ही मेड नो सीक्रेट ऑफ इट, उन्होंने उन चीज़ों को सीक्रेट नहीं रखा. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड टू स्पीक बिफोर सच एन असेंबली. इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने उन्होंने पहली बार इस तरह एड्रेस किया, क्योंकि इतनी गैदरिंग तो उन्होंने देखी नहीं थी, और वो भी फॉरेनर्स की, और वो भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. एंड एज द डेलीगेट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे presented one by one they started coming to the dais, and they had to announce themselves in public with a brief harangue. और उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अपने आप को जो है वो क्या करना था, लॉन्च करना था. क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेलीगेट्स वर देयर, दे वर रिप्रेजेंटिंग, व्हाट वर दे रिप्रेजेंटिंग, दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर रिलीजन्स. तो उनको बड़े लाउडली एड्रेस करना था, कि क्राउड बहुत ज़्यादा था. विवेकानंदा लेट हिज टर्न गो बाय आवर आफ्टर आवर until the end of the day. विवेकानंदा kept on waiting for his turn patiently, आराम से बैठे रहे. एंड ऑफ द डे आ गया, शाम हो गई. बट देन हिज स्पीच वॉज लाइक अ टंग ऑफ फ्लेम. लेकिन द वे ही स्पोक, इट वॉज लाइक आग लग जाना. इट वॉज अ टंग ऑफ फ्लेम. अमंग द ग्रे वेस्ट्स ऑफ द कोल्ड डिजर्टेशन इट फायर्ड द सोल्स ऑफ द लिसनिंग थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग होता है ऑडियंस, जो धर्म से रिलेटेड जो है चीज़ों को सुन रही थी. सो दे वर ग्रे वेस्ट्स ऑफ कोल्ड डिजर्टेशन, मीन्स पीपल विद ग्रे हेयर. वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशंस थे, जो बताने का तरीका था, इट वॉज वेरी कोल्ड. जैसे आपने सुना होगा कि जो
आप भागवत वगैरह सुनने के लिए जाते हो, इफ़ इट इज़ इन संस्कृत, जनरली संस्कृत में रहती हैं ये बुक्स, तो द वे दोज पीपल दे रिप्रेजेंट, वो जो जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या है, इट इज़ एट टाइम्स इट सीम्स दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग इट एंड इन इमोशनल अनइमोशनल वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे डिटैच्ड होकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस तरह से बताया क्या था। इट वॉज अ कोल्ड डिजर्टेशन, जो एक्सप्लेनेशन थी, इट वॉज लाइक जो आप एक्सप्लेन करते हो रिलीजन को, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी भी सेक्ट को, वो कैसी होनी चाहिए, आम आदमी की समझ में आनी चाहिए। लेकिन व्हाट डू वी डू व्हेन वी एक्सप्लेन इट इन अ वेरी टफ वे, हमें लगता है कि हम अपनी लर्नडनेस को जो है एग्जिबिट कर रहे हैं, एक्चुअली वो चीज़ नहीं है। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, दूसरे इंसान को कंफ्यूज करने के लिए उस चीज़ को हम टफ बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सामने वाला इंसान उसको रिसीव नहीं कर पाता, तो हमारा मोटिव जो है वो फुलफिल नहीं होता। ठीक है, सो देयर वर ग्रे वेस्ट्स ऑफ कोल्ड डिजर्टेशन, इट फायर द सोल्स ऑफ लिसनिंग थ्रोंग। लेकिन जो लोगों का थ्रोंग था, जो वो पूरी भीड़ थी, दे वर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्पीच, उनके स्पीच से इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, इतना अच्छा इम्पैक्ट गया, इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर हिम, उनके लिए तो वो इमेजिनेशन से बाहर ही था। हार्डली हैड ही प्रोनाउंस द वेरी सिंपल ओपनिंग वर्ड्स, उन्होंने जो ओपनिंग वर्ड्स बोले ना, वो शायद बड़ी मुश्किल से भी बोले थे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों, दैन हंड्रेड्स अरोज इन देयर सीट्स एंड अपलॉडेड, काउंटलेस पीपल अपनी सीट से खड़े होकर दे स्टार्टेड अपलॉडिंग, अपनी जगह से खड़े होकर उन्होंने जो है वो क्लैपिंग शुरू कर दी। ही वॉन्टर्ड वेदर इट कुड रियली बी ही दे वर अपलॉडिंग, और स्वामी विवेकानंदा को हैरानी हुई कि ये लोग क्या उनके लिए अपलॉड कर रहे थे, उनको वो एनकरेज कर रहे थे। ही वॉज सर्टनली द फर्स्ट टू कास्ट ऑफ द फॉर्मलिज्म ऑफ द कांग्रेस, वो पहले इंसान थे जिन्होंने जो फॉर्मल मीटिंग थी ना रिलीजियस जो पार्लियामेंट की, उससे वो बाहर चले गए। मीन्स की जो फॉर्मल मीटिंग थी, फॉर्मल मीटिंग में क्या रहता है, नॉर्मली मैंने आपको बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग में डिफरेंस रहता है। फॉर्मल क्या रहता है, व्हेन वी हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट, प्रिसाइज रहना है, टू द पॉइंट रहना है, लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े सिंप्लीफाइड वे में रिलीजन को डिफाइन किया, और धर्मों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वे में किया, और विवेकानंदा ने बड़े सरल तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से उसको डिफाइन किया। एंड स्पीक टू द मासेज इन द लैंग्वेज फॉर विच दे वर वेटिंग, मासेस में जो क्राउड था ना, उसके साथ जो उन्होंने बात की उस तरह की लैंग्वेज में कि जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। सपोज़ आप कहीं जो है वो भागवत के लिए जाते हो, या कहीं रिलीजियस जो है वो गैदरिंग है उसके लिए जाते हो, लेकिन वहाँ की जो भाषा है वो आपकी समझ से दूर है, वहाँ एग्जाम्पल जो है वो कोट किए जा रहे हैं वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा, वो आपको टच नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर के बाद यू विल फील लाइक यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो व्हाट वी नीड टू डू, जो एक्सप्लेन करने वाला है उसकी एक्सप्लेनेशन जितनी सिंपल होगी, जितनी सोबर होगी, जितनी सरल होगी, उतना ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट हो पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा। सो द कांग्रेस एंड टू स्पीक द मासेस इन द लैंग्वेज फॉर विच दे वर वेटिंग, वो एक क्लोज सी अफिनिटी वाली, अपनेपन वाली भाषा की बात कर रहे थे। साइलेंस फेल अगेन, खूब सारी प्रेज हुई, उसके बाद फिर दे वर साइलेंट। ही ग्रेटेड द यंगेस्ट ऑफ द नेशंस इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मोनेस्टिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड, उन्होंने जो यंगेस्ट नेशंस थे, जो फास्टली जो लेटेस्टली जो ग्रोन नेशंस थे, जो यंगेस्ट नेशंस थे, उनको उन्होंने सबसे पुराना जो वैदिक ऑर्डर ऑफ सन्यासी था उसके नेम पे उन्होंने उसको एड्रेस किया, और उन्होंने ये बताया कि ये सबसे पुराना जो है मोनेस्टिक ऑर्डर है वर्ल्ड का, दुनिया में जो मोनेस्टिक ऑर्डर है, जो संत समाज का जो पैटर्न है, दैट डील्स विद वैदिक ऑर्डर, वो कहाँ से आया, भारत जन्मभूमि रही है लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स की, यहाँ पे ही जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स पैदा हुए हैं मैक्सिमम। इवन राम या कृष्ण का हम एग्जाम्पल लें, गॉडेस सीता का एग्जाम्पल लें, राधिका का एग्जाम्पल लें, रुक्मणी का एग्जाम्पल लें, गॉडेस दुर्गा का एग्जाम्पल लें, तो जितने भी जो रिलीजन से एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो कहाँ, भारत भूमि की देन है। सो व्हाट डिड ही से, ही जस्ट टॉक्ड अबाउट, he didn't talk about one religion, उन्होंने एक धर्म के बारे में नहीं बात की, उन्होंने एज अ होल जनरल बात की। he presented Hinduism as the mother of religions, उन्होंने कहा हिंदुइज़्म इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी कि जैसे भारत की संस्कृति सभ्यता अपने आप में सबको समा लेती है, उसी तरह हिंदुइज़्म जो है वो सारे धर्मों की जो है वो मदर है, उसको समाहित करने की शक्ति रखती है, या ये बोलने की मदर के जो बच्चे हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जिस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहो। वो हैड टॉट देम द डबल परसेप्ट, एक डबल तरह से एक्सप्लेन किया है, क्या है, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड वन अनदर। बेसिक क्या है,
हम लोग जब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इट इज़ द मेन थिंग, फाइन, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड वन अनदर, एक दूसरे को स्वीकार करो, एक दूसरे के रिलीजन को स्वीकार करो, एंड अंडरस्टैंड और समझो। आप चर्च में जाते हो, ठीक है, गो विद गो देयर विद ओपन हार्ट। आप मॉस्क में जाते हो, उस तरह से जाओ, गुरुद्वारा में, टेम्पल में, जहाँ भी जाते हो। तो अगर हम रिसेप्टिव होंगे दूसरे रिलीजन्स के लिए, तो सामने वाला भी हमारे रिलीजन के लिए रिसेप्टिव होगा। भारत में एक जो यूनिक ट्रेट है वो क्या है, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग जीने की आज़ादी है। अपने अकॉर्डिंग हम पूजा करते हैं, अपने अकॉर्डिंग हमारे फेथ हैं, बिलीफ हैं, ठीक है। तो उस तरह से उन्होंने क्या कहा, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड वन अनदर। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, हमें ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। दैट इज़ द कोर ऑफ आवर रिलीजन। ही कोटेड 2 ब्यूटीफुल पैसेजेस फ्रॉम द सीक्रेट बुक्स। पवित्र बुक से उन्होंने 2 पैसेज कोट किए। Whoever comes to me, M capital is refer to God. What God says that whoever comes to me, मेरे पास जो भी आता है, through whatsoever form, किसी भी फॉर्म में, जैसे मर्जी वो वर्शिप करे, वो प्रेयर जो है वो चर्च में करे, मॉस्क में करे, गुरुद्वारा में करे, वो मोनेस्ट्री में करे, वो पेड़ के नीचे करे, वो घर के अंदर करे, या फिर वो ग्राउंड में बैठ के अगर प्रेयर करता है, इन whatsoever form I reach him, God is there for him। भगवान उसको स्वीकार करता है, उसके पास पहुंचता है, जैसे मर्जी आओ। जैसे हम बोलते हैं ना कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल क्या है, उस परम पिता परमात्मा के पास हमें जाना है, वो हमारी मंजिल है, ऑलवेज हेल्प्स अस। सो ऑल मैन आर स्ट्रगलिंग थ्रू द पाथ्स विच इन द एंड लीड टू मी। लार्ज नंबर ऑफ पाथ्स आर देयर। अलग अलग धर्मों के रास्ते हैं, चाहे डेथ के बाद बरियल है, चाहे क्रीमेशन है, जो मर्जी रिचुअल है, लेकिन अल्टीमेटली आवर सोल इट गोज एंड यूनाइट्स विद गॉड। उस परम शक्ति में, परम ज्योत में समाहित हो जाती है हमारी जो आत्मा है। सो व्हाट ही सेज, ऑल मेन आर स्ट्रगलिंग थ्रू पाथ्स। अलग अलग रास्तों से लोग चल के आ रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है, एंड दैट डेस्टिनेशन इज़ रिलेटेड टू आर सोल। हमारी जो आत्मा का डेस्टिनेशन है वो क्या है, गॉड है। ऊपर वाले के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है, खुदा के पास जाना है, ठीक है। ईच ऑफ द अदर ओरेटर्स हैड स्पोकन ऑफ हिज गॉड। सारे के सारे स्पीकर्स ने अपने भगवान के बारे में बात की। किसने क्राइस्ट के बारे में बात की, किसने अल्लाह के बारे में बात की, किसने जो है वो महावीर के बारे में बात की, किसने जो है वो बुद्धिज़्म के बारे में बात की। ऑफ द गॉड ऑफ हिज सेक्ट, अपने सेक्ट के गॉड के बारे में बात की। ही अलोन स्पोक, वो एक ऐसे इंसान थे, स्पोक ऑफ ऑल देयर गॉड्स, जिसने सारे के सारे गॉड्स के बारे में बात की कि आप जहाँ मर्जी से चलो, जैसे मर्जी पहुँचो, डेस्टिनेशन एक है, उसको जिस मर्जी नाम से आप बुला लो, वो कभी मिसगाइड नहीं करेगा आपको। वो कभी ये नहीं बोलेगा दूसरे का नुकसान करो, ये नहीं बोलेगा कि स्वार्थी हो जाओ। वो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, जो जिस्ट ऑफ ऑल रिलीजन है, दैट इज़ मानवता। मानवता के ऊपर जो कंसेप्ट जो है वो फोकस किया गया है। सो ही अलोन स्पोक ऑफ ऑल देयर गॉड्स एंड एम्ब्रेस्ड देम इन ऑन द यूनिवर्सल बीइंग। और उन सबको जैसे यूनिवर्सल बीइंग की तरह गले लगा लिया, सबके धर्मों के बारे में बात की। इट वॉज द ब्रेथ ऑफ रामकृष्ण। किसकी गाइडलाइन थी वो, रामकृष्ण की। एंड ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू द माउथ ऑफ हिज ग्रेट डिसाइपल, जिन्होंने सारे बैरियर्स को तोड़ा अपने एक महान डिसाइपल या शिष्य के माध्यम से। रामकृष्ण वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉडेस काली के डिवोटी थे। कभी लिटरेचर इनका कभी मिलेगा तो जस्ट गो थ्रू दैट लिटरेचर। एंड whatsoever he knew about religion, whatsoever he knew about life, he just shared it with his disciple। और उनके जो डिसाइपल थे वो ही was स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने बिल्कुल छोटी एज में जाके शिकागो में इस तरह से अपने धर्म को और सर्वधर्म संभाव के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स गिव द यंग ओरेटर एंड ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन मिली उनको, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। इट टीचेस अस सर्टन थिंग्स कि एक तो यू शुड हैव समथिंग वेरी क्लियर इन माइंड, करना क्या है। रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी वहाँ से वापस नहीं मुड़ना है, ठीक है। वो चाहते थे वो उस वक्त वापस आ सकते थे व्हेन ही हैड नो मनी, ही वाज एम्प्टी हैंडेड, बट ही फेल्ट लाइक कि जो पैसे हैं उसको भी खर्च करो और मैनेज हो जाएगा, लेट मी स्ट्रगल, लेट मी मूव अहेड। टारगेट क्या था, दैट वाज अ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। वहाँ जाके रिप्रेजेंट करना था कुछ जो औरों से अलग था। वहाँ जाके उन्होंने ऐसा नहीं सोचा व्हेन वी सिट ना, जब हम लोगों को कुछ एक्सप्रेस करना होता है हम अपना कंटेंट कंपेयर करते हैं, सामने वाले ने तो ऐसा बोला, अब मेरा तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है, इसको श्रिंक करना है, छोटा करना है, कम बोलना है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया, सारे लोगों के बोलने के बाद
जो उन्होंने बोला, उसने सारे जो पार्लियामेंट और रिलीजन्स थी उसकी सारी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। अभी तक लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, अपने धर्म के बारे में बात कर रहे थे। मान लो मैं कोई हिंदुज़म के बारे में बात कर रहा था, फिर हिंदूज़ वर देयर, उनको अच्छा लगा। किसी ने क्रिश्चियनिटी के बारे में बात की, उसको अच्छा लगा। किसी ने जो है वो मान लो बुद्धिज़्म के बारे में बात की, तो बुद्धिस्ट को अच्छा लगा। लेकिन जो स्वामी विवेकानंदा ने बोला, इट वॉज लाइक्ड बाय ऑल हु वर सिटिंग देयर, सबको अच्छा लगा। तो कई चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, अपने रास्ते पे चलो ना। आपका अपने डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव गट्स, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इफ़ यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ। सो व्हाट यू विल डू नाउ, क्या होगा? आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फ्यू पॉइंट्स वी हैव डन। व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं। व्हाट वर विवेकानंदा's थॉट्स एज ही विजिटेड चाइना एंड जापान ऑन हिज वे टू शिकागो, एंड ब्रीफली डिस्क्राइब विवेकानंद स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेंथी क्वेश्चन में आपने थर्ड क्वेश्चन का सेकंड और फर्स्ट दोनों ही करने हैं। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय विवेकानंदा ड्यूरिंग हिज जर्नी टू शिकागो टू टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एंड हाउ डिड ही ओवरकम देम। डिस्क्राइब द ओपनिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो एंड अपीयरेंस एंड मैसेज ऑफ विवेकानंदा एट द पार्लियामेंट। आप लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी नहीं करोगे, उसके बाद चेंजिंग ऑफ वॉइस भी नहीं करोगे, आप लोग जो है उसके साथ में आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी नहीं करो, बिकॉज नन आस्क्स यू द सेम। ठीक है, सो you'll have to go through these questions which are very very important. You'll have to prepare this chapter in the best possible way. Everything you must know, what is the title of the chapter, what is the who is the author, कौन author है, and important things you must know about the chapter. You'll have to go through all the things. So good day.